So this chapter, the struggle for equality, this you can say it is the can be as a conclusion of all the chapters that we have studied in civics. In civics, we have discussed many topics related to equality. As the first topic of civics was equality, है ना? Equality in Indian democracy. Then we have studied about the role of state. Then we have studied about the different growing up as boys and girls, then about the media, then market that we have completed now. So different topic when we have studied. So in all the topics, this equality heading was here. ठीक है, इक्वालिटी के बारे में भी हमने हर एक टॉपिक में स्टडी किया. सबसे पहले तो अगर हमने मीनिंग डिस्कस किया, सो first of all, tell once the meaning of equality. What is the meaning of equality? Yes, beta. हाँ जी दृष्टि. Equality means everyone is equal before the law. Everyone gets the equal opportunities. Yes. So equality means everyone is equal before law. ठीक है, means law that is written in our constitution. तो हमें पता है कि equality क्या है. Equality is means everyone is equal before law. So our constitution gives that equality. लेकिन हमने अभी तक इतने टॉपिक्स पढ़े कि अगर हम जैसे सबसे पहले अगर हमने कांता के बारे में पढ़ा, ठीक है, शी वॉज स्टैंडिंग इन ए लाइन, वो एक लाइन में खड़ी थी फॉर ए वोटिंग. जिस दिन वोटिंग का डे था, देन शी वॉज स्टैंडिंग इन ए लाइन, तब वो लाइन में खड़ी थी वोट डालने के लिए. बट ऑन द सेम डे इन द इवनिंग she her daughter was ill, so she has to take her child into the hospital. Then she was again standing in a line. So what was her feeling in standing both of the lines? Has anyone remember that? Raise your hand if anyone has remember her feeling. किसकी feeling क्या थी when she was standing in both the lines? दो lines में खड़ी थी वो. Yes, Arshia. When she was standing in the line to vote for the representatives, she was feeling happy because everyone, whether rich or poor, was standing in the same line. But on the other hand, when she was standing in the line to get her daughter to the hospital, she was made to stand in a separate line than the rich, because the rich were getting a VIP treatment. Yes. So when she was standing in the line, when right to vote, so she considered that she has equality with her owner. जो उसके ऑनर जिनके पास वो काम करती थी, she is equal to them. वो भी उसी लाइन में खड़े हैं और वो भी उसी लाइन में, दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं. लेकिन जब हेल्थ की बात आई, हेल्थ फैसिलिटीज की बात आई, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात आई, तो क्या हो गया? इनइक्वालिटी, है ना. तो वहां पर उसको क्या देखने को मिली? इनइक्वालिटी. अभी हमने स्वप्ना के बारे में भी पिछले 4 टॉपिक में पढ़ा, है ना. तो स्वप्ना के रिगार्डिंग इनइक्वालिटी आपको कैसे दिखी? सपना, उसमें भी इनइक्वालिटी, इस टॉपिक में भी हमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी दिखी. तो इनइक्वालिटी कहाँ पे थी? वेयर वाज द इनइक्वालिटी? Yes, anyone else बेटा? लास्ट में हमने हेडिंग डिस्कस किया था ना कंक्लूजन में, कंसर्न फॉर इक्वालिटी. क्या था इक्वालिटी सब में? हाँ जी गुनीत. मैम, the inequality with Swapna was that she was not earning much, but the trader was earning much more. So trader has not given her the value as
हर कॉटन हैज वैल्यूड इन द मार्केट, जितनी मार्केट में वैल्यू थी उसने उसको उतना पैसे नहीं दिए, है ना। तो उसने उसको एक्सप्लॉइट किया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी, क्योंकि वो पुअर थी, है ना। एंड टाइम टू टाइम शी हैज टू डिपेंड ऑन द लोकल ट्रेडर फॉर हर इमरजेंसीज, अपनी इमरजेंसीज के लिए उसे लोकल ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, ठीक है। सो ये भी इनइक्वालिटी की एक फॉर्म है। इसी तरह हमने जो फर्स्ट टॉपिक था इक्वालिटी, द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, उसमें हमने दो और पर्सन्स के बारे में पढ़ा था कि दे वर गोइंग फॉर टेकिंग ए रूम फॉर रेंट, कि वो एक रेंट पे रूम लेने जा रहे हैं लेकिन उनको रूम नहीं मिलता है। किस बेस पे उनको रूम, नाम आपको याद होंगे अभी, अंसारी, ठीक है, वहां पे एक अंसारी थे। फिर हमने एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में भी पढ़ा था। सो दे वर आल्सो गोइंग फॉर टेकिंग अ रूम फॉर रेंट बट दे वर नॉट गेटिंग। सो वहां पे किस बेस पे उनको रेंट पे रूम नहीं मिल रहा था? हाँ जी जलश्वीर। Ma'am, they was not getting the room because they were Muslims. Because they were Ma'am, Muslims, they were of different castes. That why no one was giving them apartment yes, to rent. because they were Muslims, तो उनको कास्ट के बेस पे रूम नहीं मिल रहा था, है ना। तो इट मींस कास्ट के बेस पे भी उनके साथ क्या हुई? इनइक्वालिटी हुई। कास्ट के बेस पे उनके साथ इनइक्वालिटी की गई ना, उनको रूम नहीं दिया गया बिकॉज कि आप इस कास्ट के साथ बिलोंग करते हो। और उसमें हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी स्टोरी पढ़ी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। वो किस बेस पे था? वो भी एक तरह की इनइक्वालिटी थी। वो किस बेस पे थी इनइक्वालिटी? हाँ जी स्मृति। यस मैम, मैम वो लोअर क्लास के बेस पे थी इनइक्वालिटी, कास्ट लोअर क्लास। यस, कि वो लोअर कास्ट के हैं, सो दैट इज व्हाई दे हैव टू सिट सेपरेटली आउटसाइड। तो वो कास्ट के बेस पे हो गई। रिलीजन, जैसे अभी हमने अंसारी की तो वो किस बेस पे थी? रिलीजन के बेस पे हो गई। मतलब डिफरेंट। अभी भी हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, हर एक लॉ के इक्वल है। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे होते हैं? डिस्क्रिमिनेशन जैसे कोई रिच पुअर है, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो किसी भी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। लेकिन हमने जो इतनी स्टोरीज देखी अभी, इसी में हमने व्हेन ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, उसमें भी हमने एक स्टोरी देखी थी। अ वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही थी, है ना। सो शी वाज आल्सो गेटिंग द लेस इनकम, उसको भी लेस, उसको हम कह सकते कि सैलरी जो भी मिल रही थी। मेलानी, तो वो डोमेस्टिक वर्कर, तो उसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, उसमें भी हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था। वो किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन था? हाँ जी अर्शिया। मैम ऑन हर जेंडर। यस, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी थी, ठीक है। डिफरेंस की बिकॉज शी वाज वुमेन, सो शी वाज गेटिंग लेस पे फॉर हर वर्क, उसको अपने काम के लिए कम मनी मिल रही थी, ठीक है। तो इस तरह हमने बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज देखी और इन स्टोरीज में हमें क्या पता चला है कि नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज एवरीवन इज इक्वल, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ poverty, on the basis of rich or poor, या इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, है ना, फिर भी डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। सो दैट इज व्हाई देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल। तो हम क्या कह सकते हैं कि हर एक कम्युनिटी में कहीं भी, किसी भी, जरूरी नहीं कि हम अपनी जहां पे इंडियन कम्युनिटी है यही की हम बात कर रहे हैं, इन एवरी कम्युनिटी यानी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाएं तो कहीं ना कहीं हमें ये
इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि सारे रिच नहीं होते, सारे रिच नहीं होते। सम पर्सन्स आर, अगर कुछ पर्सन्स ऑनर हैं तो कुछ पर्सन उनके वर्कर भी होंगे। सो देयर इज इनइक्वालिटी एवरीवेयर। डिफरेंट रिलीजन भी हमें मिलते हैं, जेंडर बेस भी है डिफरेंट, कई जगह पे इनइक्वालिटी है, ठीक है। और हेल्थ फैसिलिटीज की जैसे हमने बात की थी, पब्लिक प्राइवेट, तो वो डिफरेंस भी है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रगल। इक्वालिटी को लेने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल हम किस बेस पे कर सकते हैं? जैसे अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम स्ट्रगल करेंगे। लेकिन उस स्ट्रगल करने का हमारा बेस क्या होगा? हम किस बेस पे स्ट्रगल करेंगे? वी आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमें ये राइट नहीं मिला, सो देन वी हैव टू स्ट्रगल। हमने स्ट्रगल करना है, किस बेस पे करेंगे स्ट्रगल? अगर हमें कोई राइट नहीं मिलता, देन वी कैन मूव टू द कोर्ट, वी कैन प्रोटेस्ट, है ना। बहुत देयर आर वेरियस मीन्स फॉर स्ट्रगलिंग। स्ट्रगल करने के बहुत सारे मीन्स हैं। वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वी कैन शो आवर व्यूज, वी कैन राइट आवर व्यूज। हम अपने व्यूज रिटर्न में जो मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी हमने मीडिया वाले टॉपिक में किया था, दैट मीडिया गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म वेयर द पीपल दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने व्यूज बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा स्ट्रगल हम किस बेस पे करेंगे? व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रगल? एनीवन आइडिया? किसी को कोई आइडिया है किस बेस पे हम स्ट्रगल करेंगे? हाँ जी, अब हमें ये पता चल गया है कि इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, और हमें ये भी पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। बट स्टिल अगर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, देन वी कैन स्ट्रगल, हम स्ट्रगल कर सकते हैं, वी कैन फाइट फॉर गेटिंग आवर राइट बैक। लेकिन उसका बेस क्या होगा? हम किस बेस पे डिमांड करेंगे? व्हाट विल बी द बेस ऑफ आवर डिमांड? हम वो राइट डिमांड कर रहे हैं तो उसका हमारा बेस क्या था? हाँ जी, यस जलश, यू हैव रेज्ड योर हैंड अर्लियर। हाँ जी बेटा। यस मैम, हमारा होगा कि मैम हमें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, हमें नहीं सब जो भी इस वर्ल्ड में है उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, हर एक कोई इक्वल लाइफ जी सके। तो हम अगर डिमांड कर सकते हैं या हम अगर स्ट्रगल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट दे रहा है, तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो? वो हमारा बेसिस बन गया, ठीक है। तो हमारा स्ट्रगल हम किस बेस पे कर रहे हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन, तो इट मींस यू कांट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। अगर आप करते हो तो हम किसको रेफर करेंगे? हम रेफर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करके वो हमारी स्ट्रगल का बेस होगा, ठीक है। तो अब इसी को ही हम देखते हैं। सो दिस इज आर द टॉपिक स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, ठीक है। सो इस टॉपिक में जैसे हमने क्या किया है, सबसे पहले इसमें डिफरेंट पिक्चर्स जो बनी हुई हैं, डिफरेंट जो स्टोरीज हमने अभी तक पढ़ी हैं, जो हमने अभी डिस्कस की, उनके बारे में सारा, ठीक है, कि हमने ये डिस्कस डिफरेंट स्टोरीज जो हैं वो सारे चैप्टर्स में डिस्कस की हुई हैं। और इसमें हमें ये पता चला है कि अगर हमारे साथ कहीं भी कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी और फॉर इशू ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि हमें अगर इनइक्वालिटी हमारे साथ हो रही है या हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, सो देन वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट इनइक्वालिटी, ठीक है। सो अब ये सारी इनइक्वालिटीज में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमें इनइक्वालिटी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें बता दिया कि ऑल इंडियंस आर इक्वल एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, दैट नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स और कास्ट और व्हाटएवर दे आर रिच और पुअर, मतलब किसी भी बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा,
ठीक है, हमें राइट टू वोट मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हेल्थ सर्विसेज, वहां पे हमने देखा हेल्थ सर्विसेज में क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक हॉस्पिटल्स। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं देखती है ना, जैसे कांता, हकीम शेख, ये सारी स्टोरीज हमने जो पिछले टॉपिक्स में पढ़ी हुई हैं, उनका ही पहले हमने इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो मार्केट में अगर हमने वेरियस लोग देखे, ठीक है, मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं, और वो लोग जैसे स्मॉल वर्कर्स हैं वो बड़ों के साथ, बिग बिजनेस पर्सन के साथ compete क्यों नहीं कर पाते, या डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स या फैक्ट्री वर्कर्स, कोई भी वर्कर्स हो गए, ठीक है, तो वो सारे वर्कर, फार्मर हो गए, ठीक है, छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, तो वो क्यों नहीं हम कह सकते हैं कि compete कर पाते, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस। जो पुअर पर्सन है वो क्यों बड़े बड़े बिग बिजनेस पर्सन के साथ वो कंपटीशन में नहीं आ पाते, क्यों वो इतना बेनिफिट गेन नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर पुअर एंड दे हैव रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है। अगर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, बिजनेस पर्सन के पास क्या है, मनी है, पावर है, so they are using their money and by investing more money they are gaining more profit, लेकिन उनके पास वो resources ही नहीं है, they are having lack of resources, so that is why their profit is also less, है ना। तो कहीं ना कहीं poverty और lack of resources इसका reason है, ठीक है। और जैसे हमने फिर इसमें अंसारी, ठीक है, on the other hand अंसारीज जैसे उनका देखा, so they were having, तो resources भी नहीं थे, इसलिए वो रूम ढूंढ रहे थे रेंट के लिए, है ना। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हुआ, ठीक है, रिलीजन के बेस पे। ओम प्रकाश के साथ डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हुआ, दलित, बिकॉज शी वाज दलित, सो दैट इज व्हाई ही वाज फोर्स्ड टू स्वीप द स्कूल यार्ड। तो इस तरह डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस हमने देखे, लेकिन इनके साथ ये भी हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी दे रहा है, ठीक है। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन इट इज ऑल्सो क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। ये डिफरेंट जो बेसिस हमने पढ़े। तो अब इस तरह हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो इट मींस कि यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी है तो उस इनइक्वालिटी के साथ क्या होगा, स्ट्रगल भी होगा, ठीक है। सो throughout the world, in every community, in every village or city or town, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे आते हैं, सभी लोग तो नहीं आगे आते ना इनइक्वालिटी के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए। So only some people, वो they stood up against, वो आगे आते हैं this act of discrimination, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके लिए वो फाइट करते हैं, ठीक है। और इसलिए ताकि उनको वो रिस्पेक्ट, डिग्निटी मिल सके, और जो भी हमारी कम्युनिटी है उसके जितने भी इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। सो दीज पर्सन, कुछ लोग हैं वो इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होते हैं, ठीक है। और इनको जब वो खड़े होते हैं तो उनको सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल उनको सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि वो उनके इनइक्वालिटी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग। सो इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स। तो इस तरह इंडिया में क्या है, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज। इस तरह इंडिया में भी बहुत सारे लोग क्या आ रहे हैं, आगे आते हैं फॉर दिस स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। सो इट मीन्स, जैसे हमने डिफरेंट, अभी हमने वुमेन देखा, वीवर्स की, उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव बनाई ताकि वो खुद बेनिफिट गेन कर सके। तो अब इस टॉपिक में हमने मध्य प्रदेश की एक बात करनी है कि वहां पे जो इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल हुआ वो किस तरह का स्ट्रगल हुआ और कैसे, क्या उनका रिजल्ट था, ठीक है। तो ये अब हम बात करेंगे, इसमें है तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, दैट पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट एन इशू, ठीक है। सो दे हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट वन इशू। अब वो इशू क्या था, क्यों उन्होंने स्ट्रगल किया,
क्या उसका रिजल्ट था, ठीक है, वो हम देखना है। ये चीज क्लियर होगी। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, अब ने कहाँ की बात करनी है, मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ, ठीक है। मत्स्य मीन्स ये संस्कृत का वर्ड है मछली, ठीक है, तो वो संघ है और सभी उस संघ के लोग आपस में इकट्ठे जुड़े एक इशू के रिगार्डिंग स्ट्रगल करने के लिए। और इसी के साथ बहुत सारे स्ट्रगल, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फिशर्स पर्सन है या एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या फिर स्लम ड्वेलर्स हैं स्लम एरियाज में, तो जिसको भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हर ग्रुप अपने अपने तरीके से फाइट करता है। कुछ कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं, जैसे हमने वर्कर्स की कोऑपरेटिव्स देखी, वीवर्स की, है ना, कुछ कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी इस इनइक्वालिटी को ओवरकम कर सके, ठीक है। सो अब ये जो तवा मत्स्य संघ है तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये यहाँ पे ये तवा रिवर की इमेज दिखाई गई है और ये तवा रिवर का रेजर्वोयर है। अब ये बात करते हैं क्या ये। जब भी कोई डैम बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी डैम कहीं पे भी बनाया जाता है तो उस डैम किसके ऊपर बनाया जाएगा, रिवर, एक रिवर के ऊपर ही डैम बनाया जाएगा, ठीक है। जब रिवर के ऊपर डैम बनाया जाएगा, फॉरेस्ट एरियाज, अगर उस डैम, जब अभी मैं आपको पहले इमेजेस दिखाती हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा और क्लियर होगा। अभी यहां तक ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जैसे ये मध्य प्रदेश की मैप है, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये जो मैप है, इसमें अभी इसमें ये नर्मदा रिवर के ऊपर, अभी हमने तवा वर्ड देखा ना, तवा वर्ड, तो ये तवा क्या है, एक रिवर का नाम है, ठीक है। ये तवा क्या है, रिवर का नाम है। ये तवा रिवर है और ये तवा रिवर ये वाली, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये पूरी नर्मदा रिवर जा रही है, ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। इस नर्मदा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है तवा रिवर, यहां डैम बनाया जाना है अब, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ये तवा रिवर के ऊपर डैम बनाया जाना है। तो जब भी कोई डैम बनाया जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जब भी हम कोई डैम बनाएंगे तो डैम बनाने के बाद जहां पे हमने डैम बनाया, ठीक है, तो उस रिवर के ऊपर डैम बन गया, मतलब प्रॉपर हमने सारी इतनी डैम की बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी, ठीक है, फिर उनमें से धीरे धीरे पानी आता है। लेकिन अब ये एक साइड में तो डैम की हमें पिक्चर दिख गई, एक साइड में तो ऐसे डैम बन गया, लेकिन इस डैम के पीछे क्या होगा, हाँ जी, व्हाट विल बी इन द बैक ऑफ दिस डैम। आगे तो हमें दिख गया कि हमने डैम बनाया और इस रिवर में से अब हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे और पानी को भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ डैम में से हम निकालेंगे। तो इस डैम के पीछे क्या होगा, एनीवन रेज योर हैंड। हाँ जी बेटा, इमेजिन करो, अभी मैं बाद में तो बता ही दूंगी। एनीवन कैन इमेजिन व्हाट विल बी एट द बैक ऑफ दिस डैम। इस डैम के पीछे क्या होगा, जैसे रिवर चलती आ रही थी वैसे ही रिवर होगी या कुछ चेंज होगा, इमेजिन करना है आपने सिर्फ, कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। हाँ जी, सपोज एक अब रिवर है, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर थी, पहले यहाँ पे सिर्फ रिवर थी, कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे डैम बना दिया, ये डैम हमने बना दिया यहाँ पे। तो इस डैम के पीछे जो रिवर चल रही थी वैसे ही रिवर चलती रहेगी या कुछ उसमें चेंज हो सकता है, इमेजिनेशन बेटा, अगर गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, कौन सा मैंने आपके मार्क्स काट लेने हैं इसमें। हाँ जी, यस अर्शिया,
हाँ जी, उसके आसपास की जगहें खाली हो जाएंगी रिवर के। आसपास की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो हम जाएगी। उसको साफ कर सकते जैसे हैं। जैसे यहाँ पे रिवर है ना, यहाँ पे भी पानी था पहले सारा, और यहाँ पे भी आगे हमने डैम बना दिया, ये तो रिवर का रास्ता है ही है ना। लेकिन जब हमने यहाँ पे डैम बनाया तो ये जो रिवर इतने से एरिया को कवर कर रही थी, अब ये रिवर ज्यादा एरिया को कवर करेगी, ये करेगी कि नहीं करेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दीवार बना दी, रिवर के पानी को रोक दिया। जब पानी को हमने रोक दिया है तो वो रिवर का पानी फिर पीछे इकट्ठा होगा, तभी डैम में से धीरे धीरे बाहर आएगा। हाँ जी जलेश, आप बताओ बेटा पहले। मैम वो जो रिवर है मैम उसका वाटर लेवल हाई हो जाएगा मैम, रिवर वाटर लेवल। तो रिवर के पीछे इस तरह पानी इकट्ठा हो जाएगा, है ना। आगे तो रिवर चली, अब रिवर के यहाँ पे हमने डैम बना दिया, तो इस डैम के पीछे क्या होगा, एक रेजर्वोयर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रेजर्वोयर। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि तालाब सा बन जाएगा। सो यहाँ पे तो हमने क्या किया, डैम बना दिया। ठीक है, ये तवा रिवर हो गई, तवा रिवर के यहाँ पे हमने क्या बना दिया, डैम। तो ये हो गया हमारा डैम, और ये हमारी जो पहले रिवर चल रही थी, ये रिवर चल रही थी, लेकिन इस रिवर के पीछे देखो अब क्या हो गया, इतना बड़ा रेजर्वोयर। ये सारा रेजर्वोयर कितना बड़ा बन गया, है ना। पूरी तो पिक्चर भी नहीं आई इसमें, तो रेजर्वोयर कितना बड़ा बन गया। इट मींस पहले इस रेजर्वोयर का एरिया कितना रहा होगा, अभी तो चलो इतना बड़ा बन गया ना रेजर्वोयर, तो पहले इट मींस इसका एरिया तो इतना ही था ना, सिर्फ ये रिवर आ रही थी, है ना, ये रिवर आ रही थी। लेकिन जब हमने डैम बनाया तो उस डैम के बाद क्या होगा, ये जो सारा आसपास वाला एरिया है ये सारा पानी में सबमर्ज हो गया। पहले यहाँ पे क्या थे, फॉरेस्ट थे, हो सकता है एग्रीकल्चरल लैंड हो, या कुछ लोग भी रह रहे हों, है ना। रिवर के आसपास मोस्टली लोग, जैसे यहाँ पे भी तो आप देख ही रहे हो ना, यहाँ पे अभी है सारा, क्योंकि यहाँ पे डैम बना था इसलिए यहाँ पे पानी नहीं आया, है ना। तो इसी तरह हो सकता है यहाँ पे भी कुछ लोग रह रहे हों, ये सारे एरियाज में। तो अब यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको यहाँ से जगह छोड़ खाली करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या बन गया है, रेजर्वोयर बन गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी बेटा, कि जब भी कोई रिवर बनाई जाती है सो उस रिवर के जहां पे रेजर्वोयर बनेगा वहां का एरिया क्या करती है, गवर्नमेंट खाली करवा लेती है। ठीक है, और वहां पे जो लोग हैं उनको क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस, मतलब वो जगह को छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। अब इसी तरह जो यहाँ तवा रिवर के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो ये अब इसकी हम बात करते हैं कि इनका स्ट्रगल क्या था, क्योंकि ये देखो सारे स्ट्रगल पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि पुनर्वास और जमीन दो, नहीं तो बांध खाली करो, कि ये जो आपने बांध बनाया है, डैम बनाया है, या तो डैम खाली कर दो, नहीं तो हमें काम भी दो और जमीन भी दो। ठीक है, ये चीज इतनी क्लियर हो गई। अब इसी में तवा मत्स्य संघ, ठीक है, इसके बारे में हमने देखना है कि ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। अब आपने अपनी बुक में से कल ये रीड करके रखना है। ठीक है, तवा मत्स्य संघ के बारे में इसकी हम कल स्टोरी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कि ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इतना हमने पता देख लिया कि तवा मत्स्य संघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये संघ क्यों बना, इससे पहले हमने ये इसकी बैकग्राउंड देखी कि जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उस डैम बनाने के साथ, कहीं भी कोई डैम बनाया जाएगा तो डैम बनाने के साथ साथ रेजर्वोयर पीछे बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए वो रेजर्वोयर की जगह को गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देती है, और उसके आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको गवर्नमेंट सेंचुरी डिक्लेयर कर देती है कि यहाँ पे कोई लोग नहीं रहेंगे, यहाँ पे अब ये गवर्नमेंट की स्पेस है। ठीक है, तो अगर उसके आसपास कुछ फॉरेस्ट एरिया भी है तो उसको भी सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया कि इस एरिया में भी कोई लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, और वहां पे जो लोग पहले रह रहे थे वो क्या हो जाएंगे, अब डिस्प्लेस्ड।
ठीक है, डिस्प्लेस मतलब उनको अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसी के भी बारे में ये जो स्टोरी है इनके बारे में ही है तवा मत्स्य संघ। ठीक है, तो इसको अब रीड करके रखना, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू बेटा।